Uh, Basically, the physical address is the address generated by the hardware. This is 20-bit address calculated by the SA and offset address. Segment address is basically the starting address of every segment. Segment address is a 16-bit address and हमने segment हमने basically segment assembly हमने basically जो assembly language पढ़ी थी उसमें हमने different segments पढ़े थे data segment and CS segment और उसके बाद हम लोग आते हैं offset पे ठीक है offset is the address from the starting address till that address where we have to reach where we have to reach उसके बाद हम लोगों ने segment address के different types को देखा code segment देखा basically code segment में हम लोग क्या करते हैं कि you cannot be modified the content of these registers इसको सिर्फ microprocessor का जो compiler है वो deal करता है इसके अलावा ये यूज किया जाता है for addressing the memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored और डेटा सेगमेंट को हम लोग किसी भी मेमोरी में अगर डेटा स्टोर किया है तो उसको हम लोग पॉइंट डीएस पॉइंट्स के जरिए हम लोग उसको देख सकते हैं और इसको हम लोग खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं स्टार्ट सेगमेंट रजिस्टर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं is used to store the information about the memory segment पे और ये push और pop के operations के ऊपर work करते हैं basically extra segment registers basically use किए जाते हैं the control of the compiler remains in the DS where the user can add and modify the instructions उसके बाद हम लोग आते हैं real mode memory addressing के ऊपर this mode allowed the microprocessor to address only the first 1 M bytes of the memory space is called the conventional memory or the DOS memory system. The DOS memory system requires that the microprocessor operates in the real mode. आपके जो previous lecture number 3 में मैंने आपको real mode protected mode के बारे में बड़ा डिटेल में बताया ठीक है तो ये वही चीज है कि हमारे पास जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं रियल मोड में और इसके अलावा विंडोज डज नॉट यूज द रियल मोड द 80286 एंड अबव ऑपरेट इन ईदर द रियल मोड और द प्रोटेक्टेड मोड Only the 8086 and 8088 operate in the real mode. In the 64-bit operation mode of the Pentium 4 and Core 2, there is no real mode operation. It cannot execute real mode applications. And then segments and offset segments के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया बड़े डिटेल में segment इसके अलावा the number of address lines in 8086 microprocessor is 20 and 8086 BIU will send 20-bit address so as to access one of the as to access basically one of the 1 MB memory location and then we go to the segments and the offsets segments के बारे में मैंने अभी आपको बताया segment basically क्या है and address space logically divide into the sections called the segments and to access our memory location in the real mode a combination of the segment address and offset address is needed and the segment address located with the in one of these segment registers defines the beginning address of any 64K bytes memory segment basically segment address is the starting address of every segment segment address is basically 16-bit address and offset
address is basically is the address from the starting address till that address where we have to reach. We can say that starting address and the end result and the end address is called the offset address. Here some segments CS, SS, DS, ES, FS and GS उसके accordingly कुछ offsets डिवाइन किए गए हैं और special purpose के instruction address, stack address and data address ये कुछ by default 32-bit segment and offset के combinations हैं जो different operations में use किए जाते हैं. The segment plus offset generate a 20-bit memory address to access a location within the first 1M of memory. The 8086 processor has a 20-bit address bus which gives a physical address space of up to 1 MB a 2 raised power 20 address as we can say that 50H to 55 5F and H और इससे हम लोग इसका एंडिंग एड्रेस जो होता है उसको फाइंड आउट कर देते हैं. इधर मेमोरी एड्रेस जनरेशन है. ये एक सिंपल आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम के लिए या कह लें कि उसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें ऑफसेट जो होता है वो 16 बिट रखा जाता है. सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो भी 16 बिट रखा जाता है. उसके बाद हमारे पास एडर होता है और फिर फिजिकल एड्रेस होता है. फिजिकल एड्रेस के बारे में भी मैंने आपको बताया. फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि जनरेट किया जाता है बाय दी हार्डवेयर के पास हार्डवेयर से और दिस इज द 20 बिट एड्रेस होता है. और इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑफसेट और सेगमेंट एड्रेस दोनों को ऐड करने से हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाता है. उसके बाद ये एक एग्जांपल है. इस एग्जांपल को ड्यूरिंग लेक्चर ऑन बोर्ड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे उनको भी हम लोग इंशाल्लाह ताला बोर्ड पे ऑनलाइन इस एग्जांपल को समझाएंगे ताकि आपको फिजिकली जब मैं इस एग्जांपल को समझाऊं तो ऑन बोर्ड तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे फिजिकल और बेसिकली एंडिंग एड्रेस को कंबाइन करने से ऑफसेट और ऑफसेट और सेगमेंट एड्रेस दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाता है दोनों को ऐड करने से. ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें वन और मोर रजिस्टर्स एंड ऑफसेट वैल्यूज को कंबाइन किया जाता है और उसके बाद हम लोग अपना इधर एक फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं और वो बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है. फिजिकल एड्रेस कैसे हासिल करते हैं? बेसिकली वो सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को लेके किया जाता है. सेगमेंट एड्रेस फिर मैं आपको बता देती हूँ. बेसिकली ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ऑफ एवरी सेगमेंट होता है और ऑफसेट एड्रेस जो होता है बेसिकली इज द एड्रेस फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस टिल दैट एड्रेस वेयर वी हैव टू रीच. इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मेमोरी सिस्टम शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ 4 मेमोरी सेगमेंट्स है. 4 मेमोरी सेगमेंट्स में हम लोगों के पास हमने जो मेमोरी है उसको डिफरेंट 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है जिसमें उसके पास एक्स्ट्रा स्टैक कोड एंड डाटा है और इसके अकॉर्डिंगली इसकी कुछ स्पेस डिफाइन की जाती है. हम लोग कहते हैं कि व्हेन दिस प्रोग्राम इज प्लेस्ड इन द मेमोरी सिस्टम बाय डीओएस it is loaded in the TPA at the first available area of the memory above the drivers and the other TPA programs. The area is indicated by a free pointer that is maintained by DOS. Loading program is handled automatically. Handled automatically by the program loader located within the DOS. Basically हम लोगों के पास TPA basically consist करता है
640 KB of memory where system area exists in 384 KB, ठीक है। और हमारे पास जब 1 M बाइट्स ऑफ मेमोरी होती है तो हम लोग उसको रेफर करते हैं एज अ रियल और कन्वेंशनल मेमोरी के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जब TPA प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हम लोग एरिया की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फ्री पॉइंटर से करते हैं, जो कि मेंटेन किया जाता है बाय डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके बाद हमारे पास एन एप्लीकेशन प्रोग्राम containing a code data and stack segment loaded into a DOS memory system। यहाँ पे उसकी एक पिक्चर में बेसिकली आइडेंटिफाई दिखाया गया है। उसके बाद है सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम अलाउ री लोकेशन। आप री locatable program is one that can be placed into any area of memory and executed without any change, ठीक है। उसके बाद हम उसको रिलोकेट कर सकते हैं उस प्रोग्राम को मेमोरी में और उसकी एग्जीक्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद relocatable data are data that can be placed in any area of the memory and used without any change to the program। और इससे रिलेटेड आपकी 2 एग्जांपल्स इन स्लाइड में है। इससे फ्लैग से रिलेटेड और एग्जांपल्स भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो लेक्चर होगा हम उसमें मैं आपको बोर्ड पे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आए होंगे उनको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी और बाकी लोगों को ऑनलाइन लेके हम लोग बोर्ड के ऊपर फिजिकली इन पूरी एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये एग्जांपल्स जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके कि जो हमारे पास फ्लैग होता है वो जैसे 2 बाइनरी नंबर्स हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन से फ्लैग जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए सी है तो ए सी इक्वल्स टू 1 होगा तो डैश मीन्स कि ये एक्टिवेटेड स्टेट में होगा, ठीक है। अगर z इक्वल्स टू 1 होगा तो वो भी हमारे पास फ्लैग एक्टिवेटेड स्टेट में होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग का एग्जाम्पल्स में जो हम लोगों ने फ्लैग्स के बारे में पढ़ा है कि जब a इक्वल्स टू 1 होता है तो इस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम लोग एग्जाम्पल्स में फिजिकली लेक्चर में हम लोग मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी और उसमें हम लोग का डिफरेंट फ्लैग्स की वैल्यूज को देखेंगे कि किस तरह से जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो किस तरह से वैल्यूज निकाली जाती हैं। और सेगमेंट्स और ऑफसेट से रिलेटेड भी ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है जैसे फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है उसके लिए हमारे पास ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस होगा, इन दोनों को ऐड किस तरह से करना है, हमारे पास फिजिकल एड्रेस कैसे आता है, ये सारी चीजें हम लोग जो अपना ऑनलाइन अपना जो लेक्चर होगा लेक्चर टाइमिंग में हम लोग इसको अच्छे से बोर्ड के ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और आपके इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे फ्रीली MS टीम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द इसका उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं।